आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उनके रूल, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के नियम, इंग्लिश के हर एक लेटर का उच्चारण और शब्दों का उच्चारण नियम के साथ, यानी कि विद नियम, विद रूल्स और विदाउट रूल्स, दोनों तरीके से आप सीखते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आज यहाँ पर जो है इंग्लिश की एक स्टोरी रहेगी, इसको मैं रीड करूँगी। तो रीडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड का उच्चारण यहाँ पर मैं बताऊँगी। फिर इसके बाद में आपको इसका हिंदी में अनुवाद भी मिलेगा। तो पहले होगी इसकी रीडिंग, जो सिर्फ रीडिंग करना सीखना चाहता है, उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन है उसको सीखना चाहता है, इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनका। और इसके बाद में हिंदी अर्थ के साथ इसका अनुवाद रहेगा, यानी कि जो भी इंग्लिश के वर्ड्स रहेंगे उनका हिंदी में अर्थ यहाँ पर बताऊंगी, ताकि मीनिंग्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकें, यानी कि इंग्लिश के वर्ड्स का हिंदी में अर्थ भी समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग रहेगी, उसके बाद में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन। द पीसफुल मंकी, द पीसफुल मंकी, वन डे अ tiger was having his lunch when he thought that although, इसको although नहीं पढ़ेंगे, although पढ़ेंगे, although, दो करके, THOUGH को दो पढ़ेंगे यहाँ पर। although he was stronger than the lion, still it was, इसको was ना पढ़कर was, ज साउंड आएगा एस का, was the lion। एक बार फिर से, one day a tiger was having his ना पढ़ें इसको, his lunch when he thought that although he was stronger than the lion, still it was the lion who was considered, इसको पढ़ेंगे considered to be the king, who was considered to be the king of the jungle, who was considered, क्या है ये, considered, who was considered to be the king of the jungle। आगे है this thought, इसको thought पढ़ेंगे, this thought disturbed, this thought disturbed him, and the tiger went to the lion's den, एक बार फिर से, this thought disturbed him and the tiger went to the lion's den. He started to roar
loudly, and the lion came outside his den. फिर से एक बार, he started to roar loudly, and the lion came outside his den. He said angrily, he said angrily, why are you shouting? इसको पढ़ेंगे shouting in front of my den. He said angrily, why are you shouting in front of my den? I was resting. Just go away to your side of the jungle. Just go away to your side of the jungle. The tiger said, no, this is my jungle too, and I can roar wherever I want to. The tiger said, no, this is my jungle too, and I can roar wherever I want to. Just then, a monkey came jumping around. Just then, a monkey came jumping around. He saw a tiger and a lion fighting, and quickly came between. एक बार फिर से देखेंगे, he saw, सा नहीं पढ़ेंगे, saw a tiger and a lion fighting, and quickly came between them. He asked, what is the matter with you two? He asked, what, इसको asked करके ना प्रोनाउंस करे, asked, यानी यहाँ पर के हल्का सा साइलेंट हो जाएगा. He asked, what is the matter with you two? The lion narrated the matter to the monkey. The lion narrated the matter to the monkey. The monkey said, there is nothing to worry about. The monkey said, there is nothing to worry about. The lion can sleep soundly in his den. एक बार फिर से, the lion can sleep soundly in his den while
The tiger can roar all day. The lion can sleep the lion can sleep soundly in his den while the tiger can roar all day. The monkey asked the lion to follow him inside the den. The monkey asked the lion to follow him inside the den. Once they both once they both reached reached inside, the monkey took our two cotton balls and gave it to the lion. Once they both reached inside, the monkey took our two cotton balls and gave it to the lion. He said, "Take this." He said, "Take this and stuff it inside. Stuff it inside your ear. Your ear." He said, "Take this and stuff it inside your ear. You won't hear a thing, and you can sleep for as long as you want. You won't hear a thing, and you can sleep for as long as you want." He then went in outside. He then went outside and told the tiger to roar. He then went outside and told the tiger to roar. As he roared, the lion did not come outside. Did not come outside because his ears, as he roared, the lion did not come outside because his ears were plugged were plugged. The monkey said, "I had told the lion that you are a stronger animal, and now he is afraid of you." The monkey said, "I had told the lion that you are a stronger animal, and now he is afraid of you. However, you must not come here, or the other animals might think that you were here to serve the lion. However, you must not come here, or the other animals might think that you were here to serve the lion. Serve the lion. The tiger
happily hurried back to his part of the jungle. The tiger happily hurried back to his part of the jungle. Thus the argument was solved. Thus the argument was solved peacefully by the clever monkey, who made both the animals happy. Thus the argument was solved peacefully by the clever monkey, who made both the animals happy. तो यहाँ तक थी इस पूरी स्टोरी की रीडिंग प्रैक्टिस। अब इसके बाद में इसको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की वर्ड्स को पढ़ना सीखना है, तो इस तरीके से सीख सकता है। और लास्ट में अभी इसके बाद में मैं यहाँ पर इस स्टोरी का हिंदी में अनुवाद भी करूँगी, ताकि जो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, तो किस तरीके से एक सारे सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या निकल कर आएगा, तो इसके बाद मैं स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करूँगी, तो आप ट्रांसलेशन भी यहाँ पर सीख सकते हैं, यानी हिंदी में अर्थ भी एक एक वर्ड्स का यहाँ पर जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में ट्रांसलेशन। द पीसफुल मंकी। तो यहाँ पर पीसफुल का मतलब है शांतिपूर्ण या शांतिप्रिय, मंकी मतलब कि बंदर। शांतिप्रिय या शांतिपूर्ण बंदर की एक कहानी है। वन डे, एक दिन, अ टाइगर, एक चीता, वॉज हैविंग, तो हैविंग का मतलब होता है ईटिंग, यानी कि खा रहा था। हिज लंच, यानी कि अपना लंच खा रहा था, दोपहर का भोजन, लंच। वैन यानी कि जब या जिस दौरान, जब वो लंच खा रहा था, कर रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, थॉट का मतलब सोचा। दैट की, ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि। ही वॉज स्ट्रोंगर, यानी कि वह, हालांकि वो क्या था, स्ट्रोंगर था, मजबूत था कह सकते हैं, या ताकतवर था। दैन, स्ट्रोंगर किससे था, दैन यानी से, किससे, द लायन, किससे था, लायन से, शेर से। स्टिल यानी कि फिर भी। इट वॉज द लायन, यानी कि क्या था, वो लायन था, शेर था। हु वॉज, यानी कि वो क्या था, लायन था, शेर था, जो या जिसे। वॉज कंसीडर्ड का मतलब है माना जाना, तो माना जाता था। वॉज कंसीडर्ड, माना जाता था या समझा जाता था। कंसीडर्ड का मतलब। टू बी यानी कि होना द किंग, यानी कि उसे राजा होना माना जाता था। द किंग यानी कि राजा, कहाँ का, ऑफ का, कहाँ का, द जंगल का। दिस थॉट यानी कि यह विचार डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है परेशान किया, तो परेशान किया, इस विचार ने परेशान किया। हिम यानी कि उसे। एंड द टाइगर, जो टाइगर है, चीता है, वेंट गया, टू द लायंस डेन, किसकी ओर गया, जो शेर था उसकी डेन की ओर, उसकी डेन की तरफ। डेन का मतलब होता है शेर की जो गुफा है, उसको बोलते हैं डेन, DEN, डेन। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया। टू रोर का मतलब होता है दहाड़ना, लाउडली, जोर से उसने क्या कर दिया,
दहाड़ना शुरू कर दिया। एंड द लायन, जो लायन है शेर, केम आया, आउटसाइड बाहर, हिज डेन यानी उसकी डेन से, उसकी गुफा से बाहर आया। ही सेड, उसने कहा या बोला, सेड एंग्रीली, कैसे, गुस्से से, गुस्से से उसने कहा, बोला, वाई आर यू शाउटिंग, वाई का मतलब क्यों, और तुम, यू का मतलब तुम, आर शाउटिंग, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, तो तुम क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। इन फ्रंट ऑफ, यह है इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने, किसके सामने, माय डेन यानी कि मेरी गुफा के सामने तुम क्यों शाउट कर रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। आई वॉज रेस्टिंग, रेस्टिंग आराम करना, रेस्ट का मतलब, तो रेस्टिंग, वॉज रेस्टिंग यानी कि मैं आराम कर रहा था। जस्ट गो अवे टू योर साइड ऑफ द जंगल, तो क्या करो, तुम बस अपनी जो साइड है जंगल की उस और गो अवे, चले जाओ। द टाइगर सैड, द टाइगर ने कहा, नो नहीं, दिस इज माई जंगल, नहीं यह क्या है, मेरा जंगल, टू भी, तो यह मेरा भी जंगल है, दिस इज माई जंगल टू। एंड आई कैन रोर, मैं क्या कर सकता हूँ, कैन कर सकता हूँ, रोर दहाड़ सकता हूँ, वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, आई वॉन्ट टू मतलब मैं जहाँ चाहूँ, वेयर एवर आई वॉन्ट टू, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ दहाड़ सकता हूँ। वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। जस्ट देन यानी कि तभी, जस्ट देन अ मंकी, एक बंदर, केम आया, जंपिंग कूदते हुए, अराउंड आसपास भी कह सकते हैं, या के पास, समीप भी, अराउंड, तो उसी दौरान क्या होता है, तभी एक मंकी कूदते हुए उनके पास आया। ही सॉ, उसने देखा, किसने, मंकी ने, अ टाइगर एंड अ लायन फाइटिंग यानी कि झगड़ते हुए, उनको देखा दोनों को। एंड क्विकली केम बिटवीन, और फटाफट से आया, बिटवीन यानी कि के बीच में, उन दोनों के बीच में, डैम बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में आया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वॉट इज द मैटर, मैटर का मतलब होता है मामला, तो क्या मामला है, विद यू टू मतलब तुम दोनों के बीच में क्या मामला है, क्या झगड़ा है, मैटर का मतलब मामला, मामला या मुद्दा। द लायन नैरेटेड, नैरेट करना, कोई बात को कहकर सुनाना, बताना, तो द लायन नैरेटेड द मैटर, जो सारा मैटर था, मुद्दा था, मामला था, वो नैरेट कर दिया यानी कि सुना दिया, बता दिया, किसको, टू द मंकी, मंकी को। द मंकी सैड, मंकी ने कहा, बोला, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, मतलब इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। द लायन कैन स्लीप साउंडली इन हिज डेन, साउंडली मतलब साउंड के साथ जो है, आवाज के साथ जो है, डेन में, कौन, लायन जो है सो सकता है, वाइल जबकि द टाइगर कैन रोर ऑल डे, यानी कि लायन जो है साउंड के साथ सो सकता है, जो भी आवाज हो, और टाइगर जो है रोर कर सकता है, दहाड़ सकता है, ऑल डे यानी कि पूरे दिन। द मंकी आस्क्ड द लायन टू फॉलो, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, तो क्या किया उसने, कहा या बोला, द लायन टू फॉलो, फॉलो हिम, फॉलो का मतलब मानना, हिम इनसाइड द डेन, जो भी, फॉलो का मतलब यहाँ पर है कि पीछा करना, ठीक है, यहाँ पर है कि पीछा करना, हिम यानी उसका, इनसाइड द डेन यानी अंदर तक उसका क्या करे, पीछा करे। वंस दे बोथ, वंस यानी कि एक बार, दे बोथ वे दोनों, रीच्ड यानी कि पहुंचना, तो पहुंचे, इनसाइड अंदर, किसके अंदर, डेन के अंदर, गुफा के अंदर। द मंकी टुक आवर टू, टुक यानी लेना, लिया, आवर यानी कि अपने, उसके खुद के, स्वयं के, अपने, टू कॉटन बॉल्स यानी कि रुई की दो बॉल्स, छोटी छोटी जो रुई की बॉल्स होती है वो, एंड गेव इट टू द लायन, और गेव इट यानी उसे दे दिया, उन बॉल्स को, कॉटन बॉल्स को, टू द लायन को। ही सैड, उसने कहा, टेक दिस यानी ये लो, एंड टेक दिस स्टफ, स्टफ का मतलब होता है भरना, इट यानी भर लो इन्हें, इनसाइड योर ईयर
स्टफ का मतलब भरना, फिल करना। यू वॉन्ट हियर अ थिंग, यहाँ तक हो गया कि भर लो। स्टफ इट इनसाइड योर ईयर, अपने कानों में इन 2 कॉटन बॉल्स को भर लो। यू वॉन्ट हियर, वॉन्ट जो दे रखा है ये है विल नॉट हियर, यानी सुनना, तो तुम नहीं सुनोगे अ थिंग, एक भी चीज। एंड यू कैन स्लीप, और तुम कैन स्लीप यानी सो सकते हो। फॉर समय के लिए, फॉर यहाँ पर समय के लिए। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यानी कि जितना चाहो उतना देर तक, उतनी देर तक तुम सो सकते हो। एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। ही देन वेंट आउटसाइड, ही यानी वह फिर गया आउटसाइड, बाहर। एंड टोल्ड द टाइगर टू रोर, और जो टाइगर है, चीता है, उसको दहाड़ने के लिए कहा। एज ही रोड, यानी कि जैसे ही वह दहाड़ा, द लायन डिड नॉट कम आउटसाइड, जो लायन था वो बाहर नहीं आया। बिकॉज, क्योंकि, हिज ईयर्स, क्योंकि उसके कान, वर प्लग्ड, उसके कान क्या थे, प्लग्ड थे। प्लग्ड का मतलब बंद कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। द मंकी सैड, किससे, कॉटन बॉल से। द मंकी सैड, मंकी ने, बंदर ने कहा। आई हैड टोल्ड द लायन, मैंने जो है लायन को, शेर को बोल दिया था कि दैट यू आर अ स्ट्रोंगर एनिमल, तुम हो स्ट्रोंगर यानी शक्तिशाली जानवर। एंड नाउ ही इज अफ्रेड ऑफ यू, अब जो है कौन, कौन, ये जो लायन है वो डरा हुआ है। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ होना, भयभीत होना। ऑफ यू यानी कि तुमसे। हाउएवर, हालांकि, यू मस्ट नॉट कम हेयर, तुम्हें यहाँ जो है नहीं आना चाहिए। मस्ट नॉट यानी निश्चित ही या पक्का ही तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। हेयर का मतलब यहाँ। और द अदर एनिमल्स, या फिर जो कोई अन्य एनिमल्स है, अदर एनिमल्स जानवर्स है, माइट थिंक यानी कि ऐसी शंका है, सोच सकते हैं, दैट यू वर हेयर कि तुम यहाँ पर थे, टू सर्व द लायन यानी कि लायन की, सर्व का मतलब सेवा करना, यानी कि लायन की सेवा करने के लिए तुम यहाँ थे, तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। द टाइगर हैप्पीली, जो टाइगर था खुशी से, हैप्पीली खुशी से, हरीड बैक टू पार्ट ऑफ, हरी जल्दी की, ठीक है, हरीड जल्दी किया, वापस जाने की जल्दी की, टू हिज पार्ट अपने हिस्से में, ऑफ द जंगल यानी जंगल के अपने हिस्से में जाने की खुशी से जल्दी की। दज द आर्ग्यूमेंट, इस प्रकार, दज इस प्रकार, द आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, वॉज सॉल्व्ड पीसफुली यानी कि सॉल्व्ड जो है हल कर दी गई थी, शांति पूर्वक, शांति प्रिय रूप से जो ये बहस है उसको समाप्त कर दिया गया था। बाय के द्वारा, द किसके द्वारा, बाय का मतलब के द्वारा, द क्लेवर यानी चतुर चालाक या कह सकते हैं बुद्धिमान मंकी बंदर के द्वारा। हु मेड यानी कि उसने, मेड बोथ द एनिमल्स हैप्पी यानी कि दोनों को, मेड का मतलब उसने, खुद ने कर दिया था, किसने, मंकी ने उन दोनों एनिमल्स को खुश कर दिया गया था, यानी मंकी के द्वारा उसको, उन दोनों एनिमल्स को खुश कर दिया गया था। कौन था वजह, मंकी। तो यहाँ पर है ये इस स्टोरी का ट्रांसलेशन, सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन हिंदी में इस इंग्लिश स्टोरी का अनुवाद करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और स्टार्टिंग में मैंने रीडिंग की ताकि सिर्फ जिसको रीडिंग करनी है वो रीडिंग की प्रैक्टिस कर सके, और जिसको इन सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ जानना है, वर्ड्स का जो भी वर्ड्स है इंग्लिश के उनका हिंदी में अर्थ जानना है, वो ट्रांसलेशन भी देखकर सीख सकता है उन शब्दों का हिंदी में अर्थ। तो आज की इंग्लिश रीडिंग की, कह सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही, ट्रांसलेशन की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।